Hello and welcome. Good evening, everyone. I am Dr. Aman Khera. I am co-founder of Care for Parents, and I welcome you all today to a very important and a very relevant discussion on importance of preventive healthcare. Let us today start the discussion with a few questions. Let me ask a question that when do we go to a doctor or a hospital? हम डॉक्टर या हॉस्पिटल को मिलने कब जाते हैं? When do we get a lab investigation or blood test done? You must be thinking that why am I asking this question, because the answer is very simple कि हम हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब बीमार होते हैं. Whenever we fall sick, we go to a doctor. Now, if we analyze this, we will understand that our action is more reactive than proactive. Means हमें जब मजबूरी आ पड़ती है, जब प्रॉब्लम आती है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं. Otherwise, there is no need to go to a doctor. Now, what is the reason behind this? The reason behind this is basically our mindset. हम ये सोचते हैं कि हमें तो बीमारी कभी हो नहीं सकती. We cannot fall sick. Our neighbor may fall sick. We will not fall sick. Even if I have a family history of cancer, heart disease, but I am fit and fine, so मेरे को कुछ नहीं हो सकता. Nothing can go wrong with me. Even if I have a diabetes, today a lot of people have diabetes in India. And I got my blood sugar done 3 months back. It was fine. I feel fit. Nothing can go wrong with me. I have high blood pressure, but I am fit and fine. I feel fit. Nothing can go wrong with me. Now, ये जो एक भ्रम है, this is a myth, and we are all living in that because we feel nothing can go wrong with me. Now, let us ask. I'll ask you another question. Is there something that can be done to prevent a disease? Is there something that can be done to prevent the complications of a long term disease? मतलब हम सब जानते हैं, जिसको डायबिटीज है वो जानते हैं कि हमारे को लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमारे को जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है वो उससे हम बच सकें? Many a times we have also heard about some person who suddenly had a heart attack and it was found that his vessels were totally blocked. Many times we've also come to know about a person जिसको कैंसर डिटेक्ट हुआ and that was last stage. So the question comes in the mind, is there a way that we can prevent it, or maybe is there a way we can detect it early so that we don't reach that stage? Now the answer to all these questions is yes. Yes, there are some diseases which can be prevented. Yes, we can detect early those diseases which have not manifested their symptoms, means जिनको हमको पता नहीं चला वो डिजीज हमारे में पनप रही है और उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं. यस, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिजीजेस लाइक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और सर्टेन थिंग्स, उनको हम प्रिवेंट या डिले कर सकते हैं. एंड दिस इज वेयर द रेलेवेंस एंड रोल ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कम्स. Preventive healthcare is not only important in the elderly age group कि जी हम 60 के ऊपर हैं, 65 के ऊपर हैं, तो हमें अपने आप को हेल्थ के लिए बचाना है. Preventive healthcare is relevant and important for all age groups. We have seen, as a doctor, we have seen young people coming up with problems, with diseases, which if had been detected earlier, could have been saved. So our topic of discussion today is going to be the importance and how we can provide ourselves preventive healthcare. For that, today we have invited a very senior physician, Dr. Ruby Bansal, who has an experience of more than 25 years in working in the field of preventive healthcare. She's been giving preventive healthcare, and she's an expert in also in infectious diseases. She has worked with major hospitals in Delhi NCR as a preventive healthcare department, and also she has worked with a lot of NGOs with the help of whom she has provided preventive healthcare to the elderly people. So thank you, Dr. Ruby, for joining us today. We are happy to have you here today. And also today we would like that if you could give us the insights how the population, the elderly, and of course the younger age group also can
provide. My request to the audience also is that if you have any questions, please feel free to ask. We are very obliged to have a senior physician at Dr. Ruby with us, and I'm sure she'll answer your questions. Thank you very much, and over to you, Dr. Ruby. Thank you, Dr. Aman Khera. Thank you, team Care for Parents. I first must congratulate the Care for Parents team. It is a wonderful team, and it has to go long way. Basically, because it's a need of an hour. So I wish you all the best for this concept, and I think a lot many will get benefited through this of your program. So my hello to everyone. Namaskar. Good evening. I would like if you can just on your videos and can be interactive with me. So this will be the wonderful thing basically, because just speaking, first thing, if you are talking on the Zoom or something, so you feel like you are lost. There is no connection. And I love to have the connection with the people. So, but we can very well make, via online also, we are doing it for the last 2 years for so many of things, COVID and different things on different diseases and removing the fear. So my request to all of you, please be interactive. Just ask, just interact in between, just can give your comments. Basically, because it's a discussion, it's not just a talk. You should listen and go away, right? Absolutely, I think that's a very good thing you have said, Dr. Ruby. जितने मन में जिसको भी क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज पूछिए. It is very important, and it should be a two-way communication. Anyway, start. Yeah, and very well said by Dr. Aman Khera. बहुत अच्छे उन्होंने बताया कि हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं. देखिए, जब तक मजबूरी नहीं होती हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. पर आप अपनी गाड़ी को सर्विस कराने कब जाते हैं? आई डोंट थिंक सो कि सब लोग सिर्फ तभी जाते हैं जब गाड़ी क्रैश करती है या उसमें कुछ खराबी हो जाती है. वो तो एक मजबूरी है, पर वो खराब ना हो, वो ठीक रहे, इसके लिए टाइम टू टाइम आप सर्विस कराने उसको जाते हैं. वॉट एवर द माइलेज आपका 5,000 पर करानी है, आपको जो है साल में एक बार करानी है, या विच एवर कार यू हैव. सो एवरी कार हैज इट्स ओन पैरामीटर्स की कब सर्विस करानी है. एंड यू गेट द रिमाइंडर ऑल्सो. अगर आप नहीं जाते हैं तो वहां से रिमाइंडर आ जाता है कि आपकी कार की सर्विस ड्यू हो गई है, राइट? सेम, आई मीन, यू नेम द एनी अप्लायंसेस एट योर होम, तो सबकी कुछ ईयरली मेंटेनेंस लेके रखते हैं. यस और नो? एनुअल मेंटेनेंस. यस. सो किसी भी चीज का एनुअल मेंटेनेंस लेके रखते हैं. उसकी भी टाइम, आपका आरओ है या आपका है, टाइम टू टाइम आप सर्विस कराते रहते हैं. पर किसके लिए कराते हैं आप ये सब चीजें? अपने लिए. आई बिलीव कि मैं और मेरी फैमिली सुरक्षित रहें. हम लोग इसीलिए ये सब चीजें कराते हैं कि हमारे घर की लाइट ठीक रहे, हमारे घर का पानी साफ आए, हमारी गाड़ी ठीक रहे, तो मुझे जब जरूरत हो तो तब नहीं कोई प्रॉब्लम हो. पर हम लोग कभी अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कि ये जो बॉम्ब है ये कब फट जाएगा और उसके बाद तो ये सारे अप्लायंसेस कुछ भी काम नहीं आएंगे. सो एवर वी थॉट अबाउट कि हमें अपनी भी कुछ केयर, कुछ एनुअल मेंटेनेंस सॉर्ट ऑफ द थिंग होना चाहिए. सो दैट इज वेयर दिस प्रिवेंटिव हेल्थ हैज रोल, राइट? सो प्रिवेंटिव हेल्थ का मतलब यही होता है कि हमने, जैसे कि हमें बीमार होने से पहले चीजों का पता चलता है. गाड़ी खराब होने से पहले हम उसको जो है टाइमली उसमें ऑयल, टाइमली उसमें फिल्टर, सब कुछ चेक करा लें. वहां पर वो कुछ करते नहीं है उसमें ज्यादा. दे डोंट चेंज योर कार इंजन. वो सिर्फ वहां पर सिर्फ चेक ही करते हैं कि क्या चीज कम है, क्या चीज ज्यादा है. तो हमने अगर इसको टाइमली प्रिवेंट कर दिया तो गाड़ी रास्ते में आपको धोखा नहीं देगी, राइट? यस, एब्सोल्युटली राइट. या सो हम लोग अपने बारे में कितना सोचते हैं. दूसरा मेरा क्वेश्चन, आपके पास हर चीज का बजट होता है. जब कोई भी हाउस वाइफ या एनीबॉडी, मेल मेंबर और फीमेल मेंबर, आप अपने घर का बजट बनाते हैं. सब चीजों का बजट होता है. बच्चों की पढ़ाई का है, बच्चों की गेम का है, बाहर खाना खाने जाने का है, पार्लर का है, और व्हाटएवर, कार का है. पर क्या आपने अपना हेल्थ बजट बनाया है हेल्थ के लिए? सो हेल्थ के लिए आपका क्या बजट है? So that is also missing, especially in India. So we don't have any preventive thing.
फॉर अस, हम सोचते नहीं है। डॉक्टर अहमद ने बिल्कुल साफ कहा, सीधा ऐसा कहा कि माइंडसेट ही नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट द माइंडसेट, देयर इज नथिंग एल्स। और ना ही हम कोई हेल्थ के लिए बजट रखते हैं आजकल। इसीलिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज का टाइम आ गया है कि आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, कोई भी हेल्थ आपकी क्रैश करे, तो आपके पास इतना होना चाहिए। सो दैट्स वाई वो भी अभी सिर्फ 1 और 2% लोग लेते हैं, नॉट ए वेरी बिग पॉपुलेशन जो ले रही है। इवन गवर्नमेंट भी ये सब चीजें कर रही है कि आयुष्मान भारत और सब तरह से, कि लोगों की हेल्थ को प्रॉब्लम नहीं हो। तो हेल्थ इज ए रियल वेल्थ, है ना। कोविड के टाइम में 2 साल में सबने देखा कि सिर्फ हेल्थ ही काम आई है, पैसा भी लोगों का रखा रह गया, प्रॉब्लम्स भी किसी ना किसी और तरह से कुछ भी काम नहीं आया। जिनकी हेल्थ अच्छी थी, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा था, जो अपनी हेल्थ की केयर करते थे, जिनको कोई कोमोर्बिडिटी नहीं थी, वही जो है लोग काफी हद तक सर्वाइव किए हैं या उनको कोविड से बचकर आए हैं। तो हेल्थ की इंपॉर्टेंस आई थिंक कोविड के टाइम में बहुत अच्छे से आई है, बट आई डोंट नो कि कितने दिन तक लोग इसको सस्टेन कर पाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ हम बातों में नहीं सोचना चाहिए कि हेल्थ इज ए रियल वेल्थ, इट्स एक्चुअली ए रियल वेल्थ। आज जो लोग कोविड से लड़कर आए हैं, घर में हैं, वो थैंक करते हैं, गॉड का थैंक करते हैं कि भाई हमें बचकर आ गए। तो ये हेल्थ को अपनी संभाल के रखना वो हम ही लोगों के हाथ में, कोई और नहीं कर सकता। अब उसके लिए हमें करना क्या है, कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं, है ना। आपको सबसे पहले जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है कि प्रिवेंट, चीजें आने से पहले हम कुछ चीजों को प्रिवेंट कर डालें, है ना। तो पहले उसके सबसे बड़ा पार्ट है उसमें कि पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। एक लोगों के मन में एक डर, एक कॉन्सेप्ट बन गया है, एक माइंडसेट बन गया है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें कुछ बीमारी निकाल देगा। भाई डॉक्टर कहाँ से निकाल देगा, ये कोई वो गाड़ी का इंजन ऑयल थोड़ी ना कि उसने किसी खराब मैकेनिक के पास चले गए तो उसने बदल के खराब वाला डाल दिया, नॉट पॉसिबल। आपके अंदर जो कुछ होगा वही निकल के, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है हम लोगों के पास कि हम उससे बीमारियों को डेवलप कर दें। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये होता है, या तो रीजन ये है, या मैं क्यों करूं 2,000 रुपए भी खर्च या 5,000 रुपए भी खर्च, अपनी हेल्थ पर मुझे कुछ हुआ तो है नहीं। सो दैट इज अनदर माइंड ब्लॉक कि मुझे कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, क्यों जाऊं मैं डॉक्टर के पास, क्यों जाऊं मैं अस्पताल, क्यों मैं पैसा खर्च करूं, है ना। खाना तो हम लोगों के घर में रोज बनता है ना, फिर हम क्यों जाते हैं बाहर खाना खाने। हाँ, वी स्पेंड द 5,000 रुपीज। आजकल कोई भी 4 लोगों का डिनर और लंच 5,000 रुपये से, आप एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 5,000 रुपये से कम नहीं आता है। खाना तो सेम खाना घर में भी बनता है। सो अपनी खुशी के लिए जाते हैं, है ना। वी फील वी नीड ए चेंज, राइट, या वट एवर द रीजन। तो हेल्थ के लिए हम क्यों प्रायोरिटी नहीं देते। सो हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी। तो अगर आप साल में एक बार अपने ऊपर कोई बजट बना के खर्च करते हैं, इवन तो पार्लर भी तो लोग जाते हैं। कहीं आपको शादी के फंक्शन में जाना है तो 5,000 रुपए वो पार्लर वाली को देने के लिए, मेकअप के लिए हमें कभी हेजिटेशन नहीं होता। बट सिर्फ हेल्थ पर ये देखने के लिए कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, व्हाई डू वी हेजिटेट। सो ये कुछ कुछ माइंड ब्लॉक है। आई एम नॉट सेइंग कि सब लोगों में है, आई एम नॉट सेइंग कि ये जो है एक ट्रेंड बन गया है, बट एक छोटा सा माइंड ब्लॉक जरूर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मैं क्यों खर्च करूं, या क्यों मैं जाऊं। पर इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज दैट कि आप समय से डिजीज का पता कर सकते हैं। और बहुत सारी डिजीज ऐसी है, स्पेशली लाइफस्टाइल डिजीज, जो कि देखिए लाइफस्टाइल आजकल सबका खराब हो गया है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, अल्कोहल, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, वर्क का हो चाहे वो फैमिली का हो, है ना। और दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों में या मेट्रो सिटीज में इवन ट्रेवल का स्ट्रेस बहुत बड़ा होता है कि यहाँ से वहां तक जाना है तो मुझे वही जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। सो एवरीबडी इज इन हरी। सो these things accumulate and give a negative impact on your health. अब उसके बाद आप लोगों को पता ही नहीं चलता। एंड सेकेंड थिंग कि इतने बिजी शेड्यूल में आप अपने सिम्टम्स को पहचान भी नहीं पाते हैं कि आपको कुछ हो रहा है।
लगता है हेडेक हो रहा है, भाई होगा कुछ होगा, बहुत स्ट्रेस है इसलिए हो रहा है। किसी को यूरिन ज्यादा आ रहा है, उसे लगता है यार मैं जल्दी जल्दी में रहता हूँ इसलिए ज्यादा रहा, मैंने ज्यादा पानी पी लिया। अगर आप अपना टाइमली एक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, सबसे पहली चीज सबको अपना हीमोग्लोबिन चाहिए। गाड़ी में पेट्रोल कितना है, सबसे पहली तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है। आप अपनी गाड़ी में जब निकलते हैं घर से तो पेट्रोल चेक करके निकलते हैं ना, कि मेरा वो कितना निशान पर है, मुझे कितनी दूर जाना है, तो 2 निशान पर है तो यहाँ तक मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं। सो हीमोग्लोबिन इज सच ए थिंग, वेरी सिंपल थिंग, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है। उसी से आपका डे शेड्यूल चलता है, उसी से आपकी लाइफ चलती है ना। एनीमिया जिसको हम बोलते हैं कि खून की कमी होना, तो खून कितना है वो पता होना चाहिए। फीमेल में 12 मिलीग्राम होना चाहिए, मेल्स में करीब 13 के करीब होना चाहिए। पर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि 8 है मेरा, ये तो ऐसे ही रहता है डॉक्टर साहब। भाई क्यों रहता है, ऑलवेज आस्क, भाई क्यों रहता है डॉक्टर साहब, बहुत समय से ऐसे ही रहता है। नोबडी ट्राई कि मेरा क्यों रहता है, राइट। तो हीमोग्लोबिन आपको पता होना चाहिए। आपके ब्लड पिक्चर में सीबीसी जो हम लोग करते हैं उसमें जो है बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसी से हमें कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि आपके खून में विटामिन B12 की भी तो कमी नहीं है, आपका जो है कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आपका जो है TLC काउंट कितना है, आपका DLC काउंट कितना है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं सिर्फ सिंपल सीबीसी में, वो पता होना चाहिए। लोगों को जनरली अपने शुगर का जरूर पता होना चाहिए। आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट, मैं एक्चुअली करीब 50,000 से भी ज्यादा हेल्थ चेकअप और हेल्थ इसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कर चुकी हूँ। उसमें देखते हैं कि जो नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल लोग, किसी के मुझे पैरामीटर कभी सही नहीं मिलते, बहुत कम लोगों के मिलते हैं। सो रीजन इज सिंपल कि उन्होंने कभी चेक नहीं कराया। शुगर लेवल, शुगर 200 आ रही है, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स मैंने जैसे पहले ही बताया कि बिजी है, सिम्टम्स हम इग्नोर कर रहे हैं। उनको काफी टाइम पूछो कि यूरिन ज्यादा आता है, हाँ डॉक्टर साहब आता तो है। भूख ज्यादा लगती है, गला सूखता है, हाँ गला तो सूखता है, मैं पानी पीता हूँ इसीलिए यूरिन ज्यादा आता है। सो दैट इज अपने आप हम लोगों ने अपने प्रिजम्पशंस बना लिए हैं कि हमें जो है ये होता है, और इसी चक्कर में जो है वो डिजीज जो है आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करती रहती है, और फिर जब डिले हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। सो सिंपल थिंग शुगर, सिंपल थिंग कोलेस्ट्रॉल कितना है बॉडी में। आजकल लोगों को हाइपोथायराइडिज्म काफी है, तो जब तक आप TSH टेस्ट नहीं कराएंगे तो नहीं पता चलेगा कि थायराइड प्रॉब्लम है, हाइपो है, हाइपर है, क्या है ना। विटामिन B12, विटामिन D सब लोगों में कम पाया जाता है, पर जब तक आप नहीं कराएंगे, ये सिर्फ विटामिन ही नहीं है, ये सारी बॉडी को आपकी रन करते हैं। ये एक तरह के आपके उसको क्या कहते हैं ना आप, मतलब जो कंप्यूटर में चिप लगाते हैं तो उस तरह का काम करते हैं ये, कि कहीं भी कोई तार मिसिंग हो गया तो वो सारी बॉडी पर इम्पैक्ट करता है। सो अल्ट्रासाउंड अगर एक आप नहीं कराते हैं, तो जैसे कि कैंसर की बात की डॉक्टर अमन खेरा ने, कैंसर्स, बहुत सारे कैंसर हैं जो कि टाइमली डायग्नोस होने पर आप उनसे बच सकते हैं, दे आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल, अगर मेमोग्राफी आप टाइम से कराते हैं और अगर उसमें अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर पता चल जाता है तो इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, और अर्ली स्टेज में आपने ट्रीटमेंट ले लिया तो इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। इवन सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल ऑल्सो, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको हम बोलते हैं, वो भी अगर टाइम से पता चल जाता है, उसके लिए टब्स में टेस्ट कराना होता है, और आजकल तो बहुत अच्छा वैक्सीन आ गया है उसके लिए, प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सभी यंग लड़कियों को, एडोलेसेंट एज में 13 के ऊपर जो लड़कियां हो गई हैं एंड बिफोर द सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट्स, इंपॉर्टेंट इज दैट, तो वो वैक्सीन ले लेना चाहिए। तो ये काफी हद तक प्रिवेंट करता है बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से, जिससे जो कि इंडिया में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन फीमेल्स। ये आप सिर्फ अल्ट्रासाउंड और एक पेप्समियर, अगर जो है जो भी जितनी भी मैरिड वीमेन है, अगर जो है 3 साल में एक बार भी अपना पेप्समियर कराते हैं तो भी जो है यू कैन इजिली डिटेक्ट, और जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है वो साल में एक बार करा सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई रोज रोज नहीं जाना आपको। मैन में प्रोस्टेट कैंसर इज वेरी कॉमन, तो आपका सिंपल टेस्ट होता है PSA टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड। प्रोस्टेट इज ए एजिंग प्रोसेस, प्रोस्टेट कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट का बढ़ना है, गदूद जिसको हम बोलते हैं गदूद बढ़ गया है तो मेंस में जो बढ़ जाता है, तो ये कोई ऐसी अबनॉर्मल चीज नहीं है। दिस इज एजिंग प्रोसेस, एज के साथ साथ जैसे फीमेल में मेनोपॉज होता है तो मेल्स में प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, रादर इसको मेंस मेनोपॉज भी कहते हैं।
तो वो साइज बढ़ता है, पर हर साइज बढ़ा हुआ कैंसर नहीं होता। अगर पीएसए टेस्ट अगर आपका गड़बड़ है तो कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। और अर्ली डिटेक्शन, प्रोस्टेट कैंसर भी एक ऐसा कैंसर है जिसको कि टाइमली अगर पता चल जाए, टाइमली आप ट्रीट करते हैं तो लाइफ को कोई खतरा नहीं रहता। राइट। हार्ट डिजीज, बहुत सिंपल से टेस्ट है हार्ट डिजीज के लिए। सबसे पहले तो लिपिड्स आपको पता होना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना चल रहा है। शुगर और कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों को ज्यादा है उनमें हार्ट डिजीज की संभावना बढ़ जाती है ना। और फिर पता कैसे चलता है? अगर आप साल में एक बार अपना ट्रेडमिल टेस्ट भी करा लें, टीएमटी जिसको हम बोलते हैं, जिससे आप जो है एक मशीन पर रन करते हैं। बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि जी मैं तो रोज जिम जाता हूँ तो मैं तो रन करता हूँ उस पर अभी मेरे ख्याल से आपने कितने केस सुने होंगे कि जिम वाले, इवन यंग लोग, जो ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। यंग कितने बड़े एक्टर्स, जनरल पब्लिक का तो पता नहीं चलता है ना। आज बॉलीवुड का जनरली पता चल जाता है क्योंकि मीडिया इज प्रमोटिंग देम। तो आपने कभी 2 सालों में 3 सालों में कितनी यंग डेथ सुनी है जो कि हार्ट डिजीज से गए, हार्ट अटैक हो गया, सडन हार्ट अटैक, एंड दे could not even survive, they couldn't even reach to the hospital। तो ये जो प्रॉब्लम है, और इसको भी हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल हार्ट डिजीज इज प्रिवेंटेबल डिजीज। पहली चीज तो अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। आज हमारा टॉपिक वो नहीं है कि हम लाइफस्टाइल कैसे ठीक करें, बट कैसे बीमारियों का पता करें। सो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का क्या रोल है हमारे जीवन में, हम उसी पर आज चर्चा कर लें। तो अगर ट्रेडमिल टेस्ट आप कराते हैं, वो आपकी एफिशिएंसी ऑफ हार्ट को बताता है। इकोकार्डियोग्राफी है, वो आपके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को बताता है। मतलब आपका वॉल्व कैसा चल रहा है, खून का जो दौरा है वो जो है किस तरह से जो है आपके हार्ट में फ्लो कर रहा है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक जा रहा है। स्पेशली ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं, ब्लड प्रेशर एक सिंपल टेस्ट है। ब्लड प्रेशर, लोग ब्लड प्रेशर भी नहीं चेक करते हैं। वो पता चलता है 250 था, 150 था और सडनली स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक होता है ना, जो दिमाग में कई बार पैरालिसिस होता है कि साइड का पैरालिसिस हो गया या कोई नस फट गई, 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं। तो वो हो जाता है। ब्लड प्रेशर सिर्फ सिंपल टेस्ट है, ब्लड प्रेशर चेक कराइए, अगर ज्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट इजी ट्रीटमेंट है। परंतु हम हर चीज में देखते हैं कि ये बीमारी मुझे दवाई खानी पड़ेगी, दैट इज अ प्रॉब्लम। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, दैट इज अनदर माइंडसेट। तो मुझे गोली खानी पड़ेगी, डॉक्टर साहब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इतनी सारी चीजें लाइफ में कर रहे हैं, कितने साइड इफेक्ट है। आजकल तो हवा का भी साइड इफेक्ट है। हम ले रहे हैं ना उसी हवा में सांस जो कि पॉल्यूटेड है। तब तो हम फिर भी हम जाते हैं बाहर निकल के, हम घर में सब अंदर बंद होके तो नहीं बैठ गए, फिर हम दवाई के लिए बहुत कॉन्शियस हैं। अल्कोहल जो लेते हैं वो अल्कोहल का कभी साइड इफेक्ट नहीं सोचते हैं, पर एक ब्लड प्रेशर की दवाई के लिए साइड इफेक्ट सोच लेते हैं। सिर्फ हमारा माइंड सेट है, माइंड ब्लॉक है, वही हमें खोलना होगा, है ना। अपनी सेहत के लिए हमें वही खोलना होगा। तो अनकंट्रोल डायबिटीज हो जाती है, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, इवन हाइपोथायराइडिज्म, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में दर्द होना, ये सब हमारी लाइफस्टाइल डिजीज हैं। इवन कुछ तरह के कैंसर भी लाइफस्टाइल डिजीज है, क्योंकि हम कभी उन चीजों को ध्यान नहीं। स्मोकर्स है जो कैंसर लंग्स का है, स्मोकिंग करते हैं 30 सिगरेट, पर कभी जाकर अपना एक चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या सीटी नहीं करा के देखते हैं। तो कैंसर पनपता रहता है और कब पता चलता है, जब लास्ट स्टेज हो जाती है। सो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हैज अ बिग बिग रोल। चाहे आप उसको फाइनेंशियली भी देखिए, अगर आपको डिजीज टाइम से पता चल जाएंगी तो पहली चीज आपको इमरजेंसी कम आएगी, इमीडिएट हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। इमरजेंसी नहीं होगी तो आपका इकोनॉमिकल बेनिफिट भी है, फाइनेंशियल बेनिफिट भी है, मेंटल तो है ही है। आजकल किसी के पास समय नहीं है बीमार होने के लिए, बिलीव मी। एंड स्पेशली आप लोग सीनियर सिटीजन हैं अगर, तो सोचिए ना कि कैसे जो है आप लोगों को, अकेले रहते हैं, कहीं रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, तो आप लोगों को लगता है भाई हम लोग ठीक रहे। बच्चे भी आपके वहां से सोचते हैं कि भाई मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी समय नहीं है आके देखने का। कुछ हो गया तो कैसे पहुंचेंगे। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम सब चीज, हम घर में राशन भी तो इकट्ठा करके रखते हैं ना अपना, क्या इमरजेंसी के लिए काम आएगा। और अपनी हेल्थ को इकट्ठा करके रखिए, वही काम आनी है। तो राशन वगैरह सब रखा रह जाता है जिस दिन हेल्थ गड़बड़ होती है, कुछ नहीं काम आता।
आई ऑलवेज यूज टू से कि अपना एक कुछ मनी साइड में निकाल के रखिए अपनी हेल्थ के लिए, इमरजेंसी के लिए। इतने भी इवन पॉलिसी भी हो तब भी कुछ मनी आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा होना चाहिए कि कभी भी कोई चीज आई तो आप उसे फट से वो एक पॉकेट, एक पर्स उठा के उसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपका जो है कुछ थोड़ा सा पैसा है, वो सब एक जगह रखिए जिससे कि आपको पता हो, उस पर इमरजेंसी लिख दीजिए। कोई भी हो, घर में सर्वेंट भी है ना, तो वो भी जो है उठा के उसको लेकर हॉस्पिटल जा सकता है। सो दैट इज व्हाट इज द प्रिवेंटिव हेल्थ। डॉक्टर रूबी, इसके कोई गाइडलाइंस हैं कि हाउ ऑफन शुड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बी डन, और हाउ विल द पर्सन नो कि मेरे को क्या चेक करवाना है और मेरे को कितना रेगुलरली चेक करवाना है? देखिए डॉक्टर साहब, जो हम आजकल बात करते हैं गाइडलाइंस, जो इसकी इंडियन गाइडलाइंस अभी तक नहीं है, पर जो यूएस गाइडलाइंस हैं, जैसे कि वो मेमोग्राफी को कहती हैं, और ऑलरेडी हम इंडियन भी वही अडॉप्ट करते हैं, मेमोग्राफी को कहते हैं कि 3 साल में एक बार करा लेनी चाहिए, once in 3 years after the age of the 40. Okay, 40 से पहले we don't recommend the mammography unless कि there is a lump, unless कि your doctor suggest. So इस केस में हम जैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन समझाते हैं कि आपको अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है, राइट? सेम इज विद द प्रोस्टेट। अल्ट्रासाउंड आपको जो है कम से कम, अगर जो है आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है, इसका सिंपल सा फंडा है, जो लोग हेल्दी हैं, जिन लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा है, वो अगर साल में एक बार भी कराते हैं या 2 साल में एक बार भी कराते हैं तो चलेगा। परंतु लाइफस्टाइल डिजीज का पता नहीं चलता कि कब एकदम से आती है। आपका लाइफस्टाइल भी खराब है तो 6 महीने पहले लोग कहने को आते हैं कि 6 महीने पहले मेरी शुगर ठीक थी। और दीज आर द सिंपल टेस्ट। अगर शुगर, हीमोग्लोबिन और अब ये कुछ चीजें जिनको डायबिटीज है उनको तो हमेशा पता ही है कि 3 3 महीने में टेस्ट कराने हैं, परंतु जिनको नहीं है वो भी साल में एक बार ये अपने टेस्ट कराएं। तो दिस इज वेरी वेरी अप्रोप्रिएट। ओनली थिंग, फ्यू टेस्ट हम लोग रिकमेंड नहीं करते हर साल, उसमें एक्सरे टेस्ट आता है, मेमोग्राफी आती है ना। जैसे एल्डरली में इवन कोलोनोस्कोपी हम 3 साल में एक बार रिकमेंड करते हैं। कॉलन का कैंसर भी एडल्ट एज में, सीनियर सिटीजन में काफी हद तक पाया जाता है, जो वो भी इजीली मिस होता है। स्टूल में ब्लड आना, पहले से कोई पाइल्स या फिशर की हिस्ट्री होना, या बार बार पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना, कभी लूज मोशन होना, तो ये सारे जनरल सिम्टम्स हैं। तो कोलोनोस्कोपी को 3 साल में एक बार कराना चाहिए, मेमोग्राफी को भी 3 साल में एक बार कराना चाहिए 40 के ऊपर। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, मीन्स की मदर को था, मौसी को था, या फर्स्ट कजन को है, तो जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है, दे शुड अंडरवेंट ईयरली मेमोग्राफी, ऑल्टरनेट मेमोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट। 1 साल मेमोग्राफी कराई, 1 साल अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट। तो जनरली वी रिकमेंड इन दैट वे। there are a lot of people, जैसे आपने कहा कि now diabetes in India is very very common. It's almost 100 people. I think 1 in 3 or 4 people are having diabetes, which is a very yes. very high number. India is one of the diabetes capital of the world. तो अगर एक नॉन डायबिटिक है तो उसका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? व्हाट ऑल शुड दे बी डूइंग एंड हाउ रेगुलरली शुड दे बी डूइंग? देखिए, जो लोग नॉन डायबिटिक हैं उनको हम सभी को एडवाइस करते हैं कि उनके पास ग्लूकोमीटर जरूर होना चाहिए, राइट? जिससे कि, क्योंकि एल्डरली में स्पेशली हाइपोग्लाइसीमिया इज आल्सो वेरी डेंजरस, शुगर का कम हो जाना, या रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशली जो लोग इंसुलिन लेते हैं तो ग्लूकोमीटर अपने पास जरूर रखें। एंड HbA1c लेवल जो हमारा 3 महीने का एवरेज बताता है, सो अगर हम उसको 3 महीने में कराते हैं एंड वी आर जस्ट कीपिंग इट ट्रैक, इट्स ए गुड कंट्रोल, तो आपकी लाइफ को डेफिनेटली कोई खतरा नहीं होगा। और डायबिटीज के आप जो है कॉम्प्लिकेशन सच एज जो किडनी प्रॉब्लम है, सबसे कॉमन जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है दैट इज ए किडनी प्रॉब्लम। लोगों की किडनी खराब हो जाती है, वो डायलिसिस पर आना पड़ता है। आप देखिए डायलिसिस में सबसे ज्यादा सिर्फ आपको डायबिटीज वाले मरीज मिलेंगे जिनको की डायबिटीज है लॉन्ग टर्म से और वो उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। तो एंड दैट इज नॉट ए वेरी गुड थिंग, कीप ऑन डूइंग द डायलिसिस, है ना। तो वो जो है 3 महीने में एक बार जरूर अपनी चेकअप कराएं, अपना इवन कोलेस्ट्रॉल भी चेक करके रखें। और ये अपना शुगर जो है, शुगर, फास्टिंग पीपी एंड HbA1c लेवल डेफिनेटली once in 3 months, और रेगुलर अपना शुगर चेक करें अपने ग्लूकोमीटर से। ऐसे भी कहा जाता है दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज इम्यूनाइजेशन।
इम्यूनाइजेशन स्पेशली इन एल्डरली आल्सो, लोग कहते हैं कि जी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एल्डरली आल्सो। बच्चों में तो टीके लगाते ही हैं, बट इवन इन द एल्डर्स, उसके बारे में कुछ कहेंगे? यस, हमें सबको पता है कि वैक्सीन डू वर्क, है ना, तभी तो हम बच्चों को टीका लगवाने जाते हैं। सभी यंग माँ बाप अपने बच्चों को टीका जरूर लगवाते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, बिकॉज नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी है पीडियाट्रिक, सभी बच्चों को वो टीके लगने ही लगने हैं। तो वैक्सीन काम करते हैं इसीलिए लगवाते हैं, बट दे आर नॉट लाइफ लॉन्ग। समय के साथ, उम्र के साथ जो है हर चीज की इम्यूनिटी कम होती रहती है। तो कुछ वैक्सीन है जो स्पेशली एल्डरली के लिए बनी, सो स्पेशली एल्डरली इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि फ्लू का शॉट हुआ, फ्लू वैक्सीन आजकल क्वाड्रीवेलेंट हर साल नया आता है। नया इसीलिए आता है कि जैसे अभी हो सकता है कि आपको अगले साल से कोविड का वैक्सीन भी हर साल आए। अभी हम सुन रहे हैं ना, अब ओमिक्रॉन आ गया, डेल्टा आ गया, गामा आ गया, तो बहुत सारे वेरिएंट आते रहते हैं। तो फ्लू ऐसे कोविड का भी आ रहा है, फ्लू के भी बहुत सारे वेरिएंट हर साल चेंज होते हैं, इसलिए हर साल वैक्सीन आता है। तो फ्लू का वैक्सीन ईयरली लेना चाहिए। निमोनिया वैक्सीन, निमोनिया में 2 तरह के वैक्सीन होते हैं, एक प्रिवनार के नाम से आता है, एक निमोकोकल आता है। तो वो दोनों वैक्सीन 60 के ऊपर, 60 साल से जो लोग ऊपर हो गए हैं, दोनों वैक्सीन लेने चाहिए। या 60 से नीचे वाले वो लोग जिनको की कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन है। कोमॉर्बिड कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, बाईपास सर्जरी हुई है या स्टंटिंग हुई है, आस्थमा है, सीओपीडी है ना, डायलिसिस पर है, या कोई तरह के कैंसर है, तो उन लोगों को ये वाली वैक्सीन जो है 60 से नीचे की एज में भी लगाए जाते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास अभी जो है निमोकोकल वैक्सीन है, प्रेवनार है, निमोकोकल 13 और निमोकोकल 23, 2 तरह के वैक्सीन आते हैं, पर 5 साल में एक बार लगाया जाता है। और ये दोनों वैक्सीन के उसमें 1 साल का गैप होता है। अगर आपने पहले प्रेवनार लगाया है तो 3 महीने में लगा सकते हैं, अगर पहले निमोकोकल 23 लगाया है तो वो 1 साल के बाद आपको प्रेवनार लगाना होता है, मतलब निमोकोकल 13। तो ये वैक्सीन इसी तरह से रखते हैं, अपने डॉक्टर से आप जो है इसकी सलाह ले सकते हैं। फ्लू का वैक्सीन ईयरली लगता है ना। कुछ समय पहले हमारे कंट्री में हर्पीज का वैक्सीन भी आया था, और इशू थे उसको जो है, क्योंकि महंगा वैक्सीन था तो इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं आई, और उसकी कोल्ड चेन के इशू थे, तो वो वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। दूसरा, आपको लोगों को स्पेशली और यंग लड़कियों में मैंने बताया है कि जो 46 साल तक, हमारे हिंदुस्तान में 46 साल की उम्र तक सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन ले सकती हैं। यंग गर्ल्स को गार्डासिल के नाम से आता है, पर जो लोगों की 30 के ऊपर उम्र है, मैरिड है, वो सर्वेरिक्स ले सकती हैं। 2 तरह के वैक्सीन आते हैं, वो भी आपके डॉक्टर की सलाह से आप दोनों तरह के वैक्सीन में से चूज कर सकते हैं। So this is a very important thing which Dr. Ruby has said and which I would like to repeat for everybody that ऐसा नहीं है कि वैक्सीन सिर्फ बच्चों को ही लगती है। हमेशा सोचते थे टीके तो बच्चों को ही लगते हैं, जो जैसे पोलियो की खुराक हो गई या जो भी टीके हो गए। Vaccination is very important for the elderly also. Like Dr. Ruby has said, against pneumococcal, against pneumonia and flu, and that goes a long way in protecting the health of the senior citizens from these diseases. And it's not only these diseases can lead to further complications also. So this is a very, very important thing. And I'm sure people are getting it applied, but कुछ टाइम पहले तक लोग सोचते नहीं थे कि जी बड़ों में भी वैक्सीन लगाने की जरूरत होती है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक चीज बताइए डॉक्टर रूबी, जैसे किसी को फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज होती है, किसके पिताजी या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को हार्ट डिजीज है, तो व्हाट टाइप ऑफ केयर शुड दे टेक, आफ्टर व्हाट एज शुड दे स्टार्ट चेकिंग देमसेल्व्स आउट? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ, जिस फैमिली में हार्ट डिजीज है वो बचपन से केयर होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि किस एज से, हम बचपन से अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ते रहे, हम लोग भर भर के जो है घी तेल मक्खन खाते रहे और एक्सरसाइज नहीं करें। आजकल के बच्चों का यही तो प्रॉब्लम हो गया ना, सारा दिन लैपटॉप और मोबाइल पर रहते हैं एंड दे डोंट मूव। तो वही चीजें वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, हम लोग जो हार्ट का रिस्क निकालते हैं, हार्ट डिजीज का रिस्क, वो कई सारे फैक्टर पर निकालते हैं। सो वी कैन नॉट चेंज द जीन्स, so family history remains there, right?
सो दे आर प्रोन टू हार्ट डिजीज। पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ये कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि मेरे तो घर में हार्ट डिजीज है इसलिए मुझे तो होनी ही होनी है। नो, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। एनवायरमेंटल फैक्टर प्लेज ए बिग रोल, आपका लाइफस्टाइल प्लेज ए बिग रोल इन डेवलपिंग द हार्ट डिजीज, है ना। आज जितने भी यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, उनकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ होगा। सो दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द, पर जिन लोगों को फैमिली में हार्ट डिजीज है, डेफिनेटली दे हैव देयर जीन्स लाइक दे आर मोर प्रोन टू द हार्ट डिजीज। सो उनको एक्स्ट्रा केयर लेनी चाहिए। मीन्स स्मोकिंग, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, हाइपरटेंशन नहीं हो, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखें, वेट को बढ़ने नहीं दें। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपना जो है, अगर जो है स्पेशली आजकल तो हम लोग यंग एज में भी तो बहुत मुश्किल है डॉक्टर खेरा ये बताना कि किस एज से, पहले हम कहते थे 40 के बाद ये डिजीज होती है, आजकल आप देख रहे हैं कि 19-19 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता है एंड इवन दे आर लूजिंग लाइफ, मतलब जिसको हम बचा ही नहीं पाते हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मैंने कहा ना, बचपन से जो है ये आदत, अगर आपके बच्चे मोटे हैं, बहुत अनहेल्दी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो डेफिनेटली उनका आपने चेकअप जो है साल में एक बार इवन एट अर्ली एज से शुरू कर देना चाहिए। और स्पेशली जो 20 साल के बाद या 18 साल के बाद डेफिनेटली अगर जो है लाइफस्टाइल डिजीज है, हार्ट डिजीज है, और कहीं ना कहीं बच्चे स्मोकिंग और उसमें भी इंडल्ज हो गए हैं, तो एक ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस इको और लिपिड प्रोफाइल, शुगर प्रोफाइल, ये सब उनको साल में एक बार जरूर कराते रहना चाहिए। This is very, very important, Dr. Ruby, what you have said, because yes, as the lifestyle is changing, a lot of diseases are coming up in the young people. But एक question I'm sure लोगों के mind में आता होगा कि मुझे क्या करना है? मुझे means everybody, see every patient, every person is individual. So how does a person know, okay, what is right for me? What is the right investigation that I should do? What is the right type of preventive health checkup? Because everybody is individual. हर एक किसी को डायबिटीज है, किसी को नहीं है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को नहीं है, किसी की क्या फैमिली हिस्ट्री है। तो हर वो कैसे सोच सकते हैं कि मेरे को क्या कराना चाहिए? How can that be? How can that guidance be given? Why the doctors are there? Why the systems are there? So everybody has a, वो जो हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट है एक फैमिली फिजिशियन का, या आपका जो है इस तरह का आजकल वो मॉडर्न वे में आप जैसे केयर फॉर पेरेंट्स कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजों को जो है अपनाना चाहिए लोगों को, है ना। आपको सही चीज तो आजकल गूगल ज्ञान बहुत ज्यादा है, व्हाट्सएप ज्ञान बहुत ज्यादा है, तो इसलिए पता सबको है। पहली चीज तो राइट डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है ना। मैंने देखा है कि कुछ लोग ओवरडू करते हैं, हर 3 महीने में आ जाएंगे जी मेरी मेमोग्राफी कर दो, क्योंकि वहां पर जो है हमने देखा कि वो है, और अगर मेरे को कैंसर है तो मैं तो अपना ब्रेस्ट भी रिमूव करा दूंगी, क्योंकि वहां हमने उस एक्ट्रेस का सुना था, तो वो उसने जो है ये प्रिवेंटिव हेल्थ में करा लिया। सो दिस इज नॉट द थिंग। वी शुड बी जुडिशियसली फॉलोइंग द guidelines. We should be judiciously according to, because every individual, everybody is a individual personality. उसकी अपनी खाने पीने का सिस्टम, उसका लाइफस्टाइल, उसका वर्क स्टाइल सब डिफरेंट होता है। तो कंसल्ट योर डॉक्टर, they will guide you a proper type of the health checkup, what suits your need, which is good for you. और एटलीस्ट नहीं तो बेसिक चीजें तो मैंने आपको बताई है कि आपको अपना सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, शुगर और अल्ट्रासाउंड, एक आप पीसीजी, आप ये सब चीजें तो अपने कराते रहिए। तो these are easily available. आजकल ब्लड लैब तो घर घर में जाकर करा देती हैं, तो घर में आप बुला लीजिए अगर आप नहीं जा पाते हैं, है ना। डॉक्टर अमन खेरा की हेल्प लीजिए। So care for parents की help लीजिए, that is what we are here for. So basically what is important is that we have to understand that preventive healthcare is very very important. ये हमें पहली concept हमको समझ आ जानी चाहिए कि preventive healthcare is very important, right? B, हमें पर्सनली अपना क्या टेलर मेड हमको अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाना है। फॉर दैट वी हैव टू बी इन टच विद अ गुड डॉक्टर, विद अ डॉक्टर हु इज एबल टू गाइड यू कि जी आपको ये इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए और ये आपको लगातार आपको रेगुलरली आपको टेस्ट या चेकअप कराने चाहिए। एंड थर्ड, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इज द विल टू गेट इट डन। बिकॉज होता क्या है, हम सोचते तो है हाँ मेरे को ना हार्ट चेकअप तो कराना है, पर मैंने सोच रहा हूँ काफी देर से मैंने कराया नहीं है,
ठीक है ना, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। आई एम श्योर सारे अगर बैठ के सोचेंगे तो उन्होंने भी सोचा होगा, उन्होंने भी कभी ना कभी किया होगा कि हाँ मेरा शुगर हाई रहती है पर मैंने एक बार चेक करवाना है। So the third point is a very important point is the will to get it done. Once you know what you have to get it done, it's best is to get it done as soon as possible and then follow up with your doctor. That these are my reports. Should we take any action or not? Whether these reports are fit for an action or not. If yes, then you have to do that. And again, after that is repeat at the particular interval which the doctor recommends. किस टाइम पे डॉक्टर ने कहा जी अब आपके अभी ये लेवल ठीक है, 6 महीने बाद फिर कराना है। ये नहीं कि 3 साल आप भूल गए हमने कराया नहीं, नो, 6 months 7 months we have to get it done. So these things are very very important and it is all, as I said in the beginning, it is all in the, it's a mindset. अगर हम अपना mindset ठीक कर लेंगे कि yes, this is an important aspect of our life, we have to make sure that we are following the right parameters and the right procedures for our preventive healthcare. I think we should be able to, if not conquer any disease, at least we can defer them or mitigate their effects. So this is a very important thing. डॉक्टर खेरा, एक मैं सबके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। इंपॉर्टेंट थिंग, मैं जो वो मैसेज जो देना चाहती हूँ, आई वांट टू गिव दैट मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आजकल जो है बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लैब, सब कुछ अवेलेबल है कि हम ये टेस्ट कर देते हैं, इतने में कर देते हैं, इतने में कर देते हैं, एग्री, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई कंसर्न इज कि आप जहां भी अपना टेस्ट कराते हैं, फर्स्ट थिंग तो पहले तो चूज करना चाहिए आपको अपने हिसाब से कि ऑथराइज लैब है कि नहीं है, ऑथराइज प्लेस है कि नहीं है। पर डेफिनेटली आफ्टर द रिजल्ट, प्लीज शो दिस रिजल्ट टू योर डॉक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई एम शेयरिंग ए वेरी वेरी मतलब वेरी वेरी सैड एक्सपीरियंस, जो कि काफी साल, 10 साल पुराना है, पर मेरे दिमाग से जाता नहीं है। आई एम टेलिंग, आई हैव डन ए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर ए वीमेन, पढ़ी लिखी वीमेन, अच्छे बड़े कंपनी के PSU के डायरेक्टर की वाइफ। She had done her full body health checkup at my organization where I was working, right? So everything is good, सब कुछ हो गया, but they did not turn up to see the result. They didn't turn up to consult. And उसमें जो है क्या हुआ कि उनकी मेमोग्राफी में चेंजेस थे, एंड वो बस उन्होंने अपने ड्राइवर से रिपोर्ट पिक करा ली एंड उसको ले जाके घर में रख दी। They didn't saw that result. And 2 साल बाद the same lady came with the 3rd stage of the cancer. 2 साल भी नहीं, even next year even. We could not save that lady. Exactly, that is what I said, that once you get it done, follow up with your doctor again, yes. Anyone whom you're talking to, your family physician or your specialist, and follow the advice. This is very, very important. So I think we have had a good discussion today, and Dr. Ruby, thank you very much for joining and telling us the importance of preventive healthcare. I would just, I would just give a message. Please don't take your health for granted. Don't take your health of your elders or even the youngsters in the family for granted. You have to follow a protocol of preventive healthcare, whatever the age group may be. If we are strict, if we follow these rules, we will, I'm sure, we'll all live healthy and have a comfortable life. Thank you so much, everyone. Thank you for joining. Thank you, Dr. Ruby. We hope that we will, I'm sure we'll call you again for some more discussions very soon. And looking forward to hear from you more. Thank you, everyone. Thank you, everyone.